हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान सिटी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर और डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डिस्ट्रीब्यूशन. The grasslands are dominated by the grasses. There is a name to the is called grassland, means dominated by the grasses. They occupy about 20% of the land on the earth's surface, and they occur in both tropical and temperate regions where environmental conditions are better than that of the desert, but rainfall is not be enough to support the growth of tree. The grassland is representative of is a ectone, means a zone in a between two ecosystem, and are found between two forest on the side of desert on the other. They are subjected to be greater variation of temperature, moisture, winds, and the high intensity of the sun. The grassland known as the various name of different part of the world. For example, they are called the prairies, steppes, savannahs, and pampas. There is a most important for is a name is a called to a different area, different name. Here is a tropical grasslands is commonly is called is a savanna. The savanna is a Hindi name. The tropical grassland is a commonly called as a savanna. They occur in the eastern Africa and South America. Australia is India is a savanna from the complex ecosystem as there are content to the grasses with the groups of trees. There are soil grassland is a rich area of fertility. There is the most important area. The savanna is an area is a soil grassland is a rich of fertility and the growth of many types of tree. The flora and the fauna here. The grassland are dominated plants with the scattering is a drought is a distance of trees in the tropical grassland. That is the flora and the fauna. The trees are less than 10 meters height and annual are is a much reduced to the grassland because there is a no shelter. The large herbivores on their biome, there is a bisons and prohor in the Northern America, and the wild horse as Aziga, Eurasia, and the zebra and the antelope South Africa. The carnivores are quite small and the number of size. They are there is a coyotes, whales, and the basgo is a foxes and the ratters. There is a name is a hawks and the lorca, sparrow, barrels, great Indian bustard, and the peafowls. There is a common birds found in the grassland. The grassland are very rich in the reptilian and insect fauna. यहाँ पर तो घास स्थल के बारे में हम चर्चा करेंगे। घास के मैदान या ग्रासलैंड, देखिए इसको घास स्थल या जो है घास का मैदान के भी कहते हैं। अगर देखा जाए सामान्यतः इसका जो है घास के मैदान में घास का जो है बहुमूल्य होती है और यह पृथ्वी की सतह के लगभग 20% भाग घेरे हुए हैं। ये उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां जो है पर्यावरणीय स्थिति मरुस्थल से अधिक अच्छी है, लेकिन पेड़ों की वृद्धि के लिए वर्षा की मात्रा पर्याप्त नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर ग्रासलैंड की बात किया जाए तो ग्रासलैंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है वर्षा की मात्रा पे, क्योंकि वर्षा जहाँ पर होगी वहाँ ग्रास जरूर उगेगी। और कहते हैं ये दोनों जगह देखने को मिलता है, चाहे वो उष्णकटिबंधीय हो वन हो चाहे शीतोष्ण वन हो, ये दोनों जगह भी जो है आपको ये ग्रासलैंड मिल जाएगा। लेकिन मरुस्थल क्षेत्र अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ बरसात की जो मात्रा होती है नहीं होता है। लेकिन कहते हैं यहाँ पर घास के मैदान एक जो है इकोटोन दो परिस्थिति तंत्र के बीच का क्षेत्र माना जाता है। एक तरफ वन और दूसरी तरफ मरुस्थल के बीच पाए जाते हैं। यानी अगर देखा जाए तो एक तरफ जो वन होती है और दूसरी तरफ मरुस्थल के बीच पाए जाते हैं। इसमें जो है तापमान, आर्द्रता, वायु एवं सूर्य के प्रकाश की तीव्रता का परिवर्तन अधिक होती रहती है। यानी आप देखोगे तो यहाँ तापमान, आर्द्रता, वायु और सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बनी रहती है और ये अधिक परिवर्तन भी होती रहती है। कहते हैं घास के मैदान विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये घास के जो मैदान है जो इसको हम ग्रासलैंड कहते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अगर उदाहरण आप देखोगे तो इसको ये जो है प्रेयरी, स्टॉपिस, सवाना और जो है पंपस नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो है ग्रासलैंड के कोई भी नाम हो सकते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सामान्यतः इसको
सवाना भी कहते हैं। यानी अगर उष्णकटिबंधीय अगर हम घास के मैदान को देखें तो इसका अगर कॉमन नेम सवाना है। ये पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भारत में इसको सवाना तुल्य चरगाह के मैदान मिलते हैं। यानी भारत में इसको सवाना तुल्य चरगाहों के रूप में, जहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने के लिए ये बहुत ही आदर्श क्षेत्र माना जाता है। कहते हैं सवाना एक जटिल जो है पारितंत्र यानी पारितंत्र बनाते हैं, जिसे घास के साथ वृक्षों का एक समूह होता है। घास के मैदानों की जो है मृदा समृद्ध और उपजाऊ होती है, क्योंकि आपको पता है अगर घास होगा और पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पौधे की पत्तियों से क्या होगा, खाद बनेगा और वो ग्रासों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसलिए इस क्षेत्र में जो है छोटे घास के साथ साथ बड़े बड़े वृक्ष भी पाए जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है फ्लोरा और फना किस प्रकार के पाए जाते हैं, यानी पादप जात और प्राणी जात जो है किस प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। क्योंकि ये दोनों कंडीशन का मिला हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ पर कई जीव के लिए सर्वाइव करने के लिए यह आदर्श जगह बन सकता है। कहते हैं घासों का बहुल्य होने के कारण जो है शुष्क अवरोधी पादपों का कहीं कहीं पाया जाना इस परितंत्र का अभिलक्षण है। घास की ऊंचाई वर्षा पर निर्भर करती है। देखिए अगर घास की लंबाई जो होगी, ऊंचाई होगी, वो वर्षा पर निर्भर करता है। अगर 0.2 मीटर से 3 मीटर तक ऊंची हो सकती है। देखिए घास के जो आकार है 0.2 मीटर से लेकर 3 मीटर तक ऊंची हो सकती है। पेड़ों की ऊंचाई जो होती है 10 मीटर से कम होती है, यानी 10 मीटर से कम पेड़ की ऊंचाई देखने को मिला है। आश्रय के अभाव में जंतुओं की संख्या बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर आश्रय नहीं है। और आश्रय की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जंतुओं बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। कहते हैं इस पारितंत्र में बड़े शाकाहारी बारहसिंगा प्रहान उत्तरी अमेरिका में और जंगली घोड़ा, गधा, सेंगा एक प्रकार के जो बारहसिंगा होता है वो भी पाया जाता है, जो कि रशिया में पाया जाता है। जेवरा और मुर्ग दक्षिण अफ्रीका में होते हैं और मांसाहारी प्राणी संख्या का आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। इनके उदाहरण जो है कोयलट, नेवस, बेडगॉर्स, लोमड़ी व फैरेट नवल की जाति का जानवर है। ठीक है, बाज, गोरैया, बल्लर्स, कुलेकन चिड़िया, सैन चिड़िया व मोर इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले आम पक्षी हैं, जो कि बहुत काफ़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। घास के मैदान में जो सुसुप कीट जाति का भी यहाँ पर बहुलता पाया जाता है, यानी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर सांप भी देखने को मिलेगा और कीट जातियाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। There is a next is a desert. Desert is the most important here. There is a distribution. First of all, come to distribution. Desert are the waterless varying region of the earth. They occupy about the 1/7 of the land on the earth surface. There is the most important 1/7 land earth of surface. Desert from the extent to the condition of sequence of ecosystem with respect to the climatic condition. There occur in two belts that encircle and the northern and southern hemisphere. The roughly is centered over their tropics of Cancer is a Capricorns and the Sahara Desert of Africa are the largest Indian. Third desert are their extension of the Sahara Desert through the Arabian and Persian Desert. There is the most important and the air climatic condition there. The climatic condition here, the first is the annual rainfall is very little. There is a rain is a very little and it may be less than 25 centimeter per annual. And at some place if the high it is a influence of distributed. And second is the temperature may be a very high is a subtropical desert and very low is a cold desert is a Ladakh. There is the most important area, the Ladakh area. The wind have a highly velocity. The wind is a very fast. There is highly velocity in this area. And the flora and the fauna here is a castrix, is Acacia ripopia, and the prickles is a pair of some of their common desert plant. The desert animal are insect, reptiles, and the rovings, rodents, and desert fox, kangaroos, as a wood rat, and rabbit is a armadillo, and the common mammals in desert. The camel is known as the sheep of the desert, as it can travel long distance and without drinking water for several days. There is a most important here. The camel is also called to the desert sheep. There is a why to call? There is a several day is the without drinking in a water survive in this area. जो है मरुस्थल की बात आ गया, डिजर्ट की बात आई है, तो इसमें सबसे पहले तो हमारा वितरण होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। अगर देखा जाए तो मरुस्थल पृथ्वी के जो है जलवहीन
बंजर भाग में आता है, जिसमें जल की मात्रा बहुत ही कम होती है और यह पृथ्वी की सतह का लगभग 7वां भाग घेरा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि 7वां भाग जो है डिजर्ट एरिया के अंतर्गत ही आता है। कहते हैं पारिस्थितिक क्रम में ये जलवायु दृष्टिकोण से एक चरम सीमा पर होते हैं और प्राय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के घेरने वाले दो पट्टियों में स्थित होते हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास ही होते हैं। अफ्रीका का सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है और भारत का थार मरुस्थल अरब और फारस के सहारा मरुस्थल का विस्तार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अफ्रीका का जो अगर आप देखोगे सहारा मरुस्थल वो सबसे बड़ा है, लेकिन भारत में जो पाया जाता है वो है थार मरुस्थल, जो अरब फारस और सहारा मरुस्थल के विस्तार के लिए उत्तरदायी होती है। कहते हैं अगर यहाँ पर देखा जाए जलवायु की कंडीशन, तो पाया जाता है कि जलवायु यहाँ पर डिफरेंट होती है। कहते हैं इसमें वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, यानी देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, यानी रेन जो होती है बहुत कम होती है। किन्हीं दो स्थानों पर अधिक होती है तो इसका जो वितरण है असामान्य भी रहती है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। कहते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का तापमान बहुत अधिक और ठंडे मरुस्थल में बहुत कम होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात होती है, अगर देखा जाए तो दिन में जो है बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, लेकिन अगर रात में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत तेज़ सर्दी भी पड़ती है। तो यहाँ का जो कंडीशन है बहुत हार्श कंडीशन है, जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। कहते हैं यहाँ वायु की जब वेग होता है अत्यधिक मात्रा में चलती है, यानी क्योंकि डिजर्ट एरिया है तो यहाँ जो है वायु काफ़ी तेज़ चलती है। यहाँ पर जो है पादप और प्राणी जाति, देखिए यहाँ पादप प्राणी जाति के लिए बेशक ये आदर्श एरिया न हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई जीव जंतु जो है पाए जाते हैं। कहते हैं अगर नागफनी देखा जाए, बबूल देखा जाए, यूफोर्बिया और कांटेदार नागफनी मत्स्य पादपों के सामान्य उदाहरण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही जीव पेड़ पौधे सर्वाइव कर सकते हैं जिसमें जो है जो पत्तियां होती है कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है और इनके जड़ें जो होती है बहुत डीपली चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जल नहीं होती है तो ये बहुत डीपली जाके जल को अब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि वर्षोजन बहुत कम होने के लिए इनकी पत्तियाँ जो होती है कांटों में रूपांतरित हो जाती है। और कई कई पौधों में तो पत्तियाँ होती ही नहीं हैं, क्योंकि पत्तियाँ रहेगी तो इसमें स्टोमेटा खुलेगा और इससे क्या होगा, इसका जो है पानी हर्ष हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा बहुत से जो है यहाँ पर जो है तनों से स्टोमेटा होने वाले पौधे पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस होती है। तो कैक्टस जो होता है अपने तनों से ही जो है अपना भोजन बनाती है। तो ये पौधों की यहाँ की विशेषता है और यहाँ की जो है कहते हैं जैसा कंडीशन पाया जाता है वैसा ही पेड़ पौधे का विकास होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मरुस्थलीय जंतु कीट और सुसे बिल बनाने वाले और कुतरंग प्राणी ही पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन कुतरने वाला प्राणी ही पाया जाता है। कहते हैं यहाँ पर छुछुंदर हो, लोमड़ी हो, कंगारू हो, चूहा, खरगोश और सामान्य स्तनधारी पाया जाता है, जो कि आम होता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पाया जाता है वो ऊँट होता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिना पानी पिए कई दिनों तक चलता रहता है। देखिए दोस्तों, ये तो आपको बचपन से पढ़ाई जाती है कि मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पैर जो होता है गद्देदार होता है और इसको सर्वाइव करने के लिए बहुत आसान बना देता है और रेत में जो है इसका पैर धंसता भी नहीं है, तो ये भी इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए इसका पैर जो होता है काफ़ी मांसपेशियों से बना होता है, जो कि क्षेत्रफल की वजह से ये धंसती नहीं है। और दूसरी बात जो होता है इसका स्किन जो होता है, क्योंकि मरुस्थल के जानवर है तो इसका स्किन जो है बहुत पतला हो जाता है। तभी पतला इसलिए होता है कि इसको जो है काफ़ी इसको सुरक्षित प्रदान किया जा सके और जो है गर्मी का ये झेल सके। और तीसरी बात ये रहता है कि इसको जो है पानी के हर्ष से बचाने के लिए इसका हुप बना होता है, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में फैट और पानी इकट्ठा रहता है। तो यही बात जो है इसको जो है राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज साबित करता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो थी इसके रिसोर्ट एरिया में मानी जाती हैं। The next is a tundra. Tundra is the most important here. The word tundra means to the barren land. The same they are found in those regions of world where environment conditions are very severe. And there are two types of tundra: is Arctic and alpine. The Arctic and the alpine is here, and their distribution. The Arctic tundra is extended as a continuous belt below to the polar ice cap and above the tree lines on the northern hemisphere. It occupies the northern fairings of their Canada, Alaska, and Europeans, and Russia and Siberia and the Iceland group or Antarctic oceans. The alpine is a tundra
is occur at a high mountain peak above to the tree lines. And since the mountains are found at all altitudes, are therefore alpines is there. Or tundra show day and the night temperature of variation. There is the next is a climate. Their climate is a permanently frozen. A subsoil called is a permafrost. Permafrost is the found in the orchards, and there is a androstic tundra. The summer temperature may be around 15 Celsius, and winter it may be a low as a minus 57 Celsius. A Arctic tundra is a very low precipitation of less than a 400 per year. There is a most important here and short vegetation period of generally less than 50 days between the spring and the autumn frost, and productivity is very low. There is the next is flora and the fauna. The typical vegetation of Arctic is a tundra is a cotton grass and sedges. The dwarf is a hail, is a bulbons, is a barches and the lichens. The animals of tundra are is a harpuyas, the rando, deers and the musca, ox, otis hare and caribous. Lemming on the squirrel, body is covered with the fur for the insulation. And the insect have a short life cycle which are completed during a variable period of the year. There is the most important. There are insulator and have a short life cycle and their body is covered with the fur. There is the period of the year. दोस्तों यहाँ पर टुंड्रा की बात की जा रही है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं टुंड्रा शब्द का अर्थ ही जो होता है बंजर भूमि। देखिए इसका मतलब ही क्या होता है, बंजर भूमि। टुंड्रा का मतलब होता है बंजर भूमि। ये संसार के भागों में पाया जाता है, ये संसार के उन सभी भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर्यावरणीय दशाएं अत्यधिक कठिन होता है, यानी जहाँ पर कोई जीव जंतु के सर्वाइव करने के लिए बहुत काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर देखा जाए टुंड्रा दो प्रकार के होते हैं, एक अंटार्कटिका टुंड्रा और एक होता है एप्लाइड टुंड्रा। अगर देखा जाए इनकी वितरण प्रणाली को या डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये जो है अंटार्कटिक टुंड्रा जो होता है ये उत्तरी ध्रुव में ब्रिटिश रेखा के ऊपर ध्रुवीय हिम आवरण के नीचे एक अवांछनीय पट्टी के रूप में अव्यवस्थित होते हैं, और उत्तरी कनाडा जो है अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया व अंटार्कटिका समुद्र के द्वीप समूहों में फैला हुआ है। कहते हैं अल्पाइना टुंड्रा ये वृक्ष रेखा के ऊपर पर्वतों पर स्थित होती है क्योंकि पर्वत सभी अक्षांशों पर पाया जाता है। अंततः जो है अल्पाइना टुंड्रा दिवस और रात्रि के तापमान परिवर्तन को दर्शाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है। अगर देखा जाए यहाँ पर जलवायु की कंडीशन, तो कहते हैं अंटार्कटिका एवं जो अंटार्कटिका और अंटार्कटिका टुंड्रा में स्थायी रूप से जमी हुई जो अब मृदा पाई जाती है, और जिसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं ग्रीष्म ऋतु का तापक्रम अगर देखा जाए तो 15 सेल्सियस के आसपास ही पाई जाती है, और शीतकाल में अंटार्कटिका टुंड्रा में तापक्रम जो होता है -57 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही हार्श कंडीशन बना देता है। वार्षिक वर्षा अगर देखा जाए तो इसमें जो है 400 मिमी से कम होती है, यानी दोस्तों जहाँ सेंटीमीटर की बात की जाती है वहाँ पर अगर मिमी में बात किया जाए तो आप समझ सकते हो कि यहाँ वर्षा जो है कितनी होगी। तभी तो यहाँ पर जो है इसको बंजर भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बात समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं बसंत और पतझड़ के बीच छोटा सा वनस्पति काल 50 दिनों से भी कम समय का होता है, यानी यहाँ पर अगर बसंत और पतझड़ की बात किया जाए तो 50 दिनों से भी कम होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। दूसरी ये उत्पादकता कम होती है, यानी अगर इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति सर्वाइव करता है तो उसके सर्वाइव करना कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उत्पादकता बहुत ही कम है। देखिए यहाँ पर उत्पादकता कम होने की वजह से क्या होगा, इसका असर पादप जात और प्राणी जात पे जरूर पड़ेगा। कहते हैं अंटार्कटिका टुंड्रा की प्रारूपिक वनस्पति कपास, घास और नरकट, बौनी झाड़ी, मीसा, बच और शैक है। टुंड्रा प्रदेश के जंतु जो है बारहसिंगा, कस्तूरी बैल, अंटार्कटिका खरगोश, वेरिवोस, लेमिंग व गिलहरी है। अगर ताप रोधन के लिए उसका जो है शरीर फर से ढका हुआ रहता है, और कीटों का जीवन चक्र अल्प होती है, यानी यहाँ पर जो है कीटों के जीवन जो होती है बहुत कम समय के लिए होती है, जो कि अनुकूल अवधि में पुण्य हो जाती है, यानी एक समय जो होता है ईयरली मूड में ये कंप्लीट अपना जीवन सर्कल कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है।